السلام علیکم پیارے دوست، پیارے ناظرین، میرے درشک، پیارے بھائی بہن، آج میں آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کا موکل والا عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ آیت الکرسی والا جو عمل ہے وہ اردو آیت الکرسی کا ہے۔ مطلب یہ کہ جو آیت الکرسی عربی میں پڑھتے ہیں اس کے معنی کو، ترجمہ کو اردو میں پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے موکل حاصل کرنا ہے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے بزرگ لوگ طرح طرح کا چمتکار دکھاتے تھے، کرامت دکھاتے تھے، اور پھر یہ عمل اسی شاگرد کو بتاتے تھے جو ان کا خاص فرما بردار ہوتا تھا، باقی سب کو نہیں بتاتے تھے۔ تو آج میں اس پر سے پردہ ہٹاؤں گا اور جو اس کے اہل ہیں اس تک یہ علم پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے پہلی بار ہو، نیا ہو۔ تو میں انڈیا سے ہوں۔ انڈیا میں ایک اسٹیٹ ہے بہار، اور بہار میں مظفر پور ضلع ہے۔ میں وہ مظفر پور ضلع میں رہتا ہوں، وہیں کا رہنے والا ہوں۔ میں 2001 سے روحانی لائن میں ہوں اور میں نے 120 سے زیادہ عملیات اور چلے کیے ہیں، جس میں سے اور لگ بھگ 150 سے زیادہ روحانی لشکر اللہ کے حکم سے آج میرے پاس ہیں، جو میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی سمجھیے کہ وہی لگ بھگ 22-23 سال ہو گیا۔ اس 22-23 سال کے سفر میں میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ پایا، بہت کچھ کھویا۔ میں اپنے تجربے سے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین، عربی والا آیت الکرسی پر میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کو ضرور آپ دیکھیں گے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو، چاہے عربی والا چاہے اردو والا، لیکن آپ پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی عمل شروع کریں گے، اور ایک بار نہیں بار بار آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک بار میں ساری باتیں آپ کے دماغ میں اٹ نہیں سکتی ہے، سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اس لیے جب کئی بار آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کچھ باتیں جو آپ بھول جائیں گے وہ دوسری ویڈیو میں آپ کو یاد آ جائے گی۔ تو کیا اب اس ویڈیو میں یہ ہم سیکھیں گے، یہ جانیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، عربی والے میں اور اردو والے میں۔ عربی والا ان کے لیے ہے جن کی عربی، جن کو اچھے طریقے سے پڑھنے آتی ہے اور جو اس کے معنی کو خود سے ہو، قرآن پڑھ کے اس کا اردو لکھ کے یاد کر لے، یا عالم ہے اس کو عربی پڑھتا ہے تو اس کا معنی اس کے دل میں آتا ہے، معنی ترجمہ وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس قدر ہے تو وہ عربی اس کے لیے ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ انڈیا میں یا پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کی عربی ایسی نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی۔ اگر وہ تھوڑا سا پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے آیت الکرسی کو اگر پڑھ لے اور پھر اس کے معنی کو بھی ٹھیک سے یاد اگر کر لیں تو آپ عربی والا پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہو پا رہا، آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ کا نہیں ہو پائے گا، ایسا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے عربی پہ اتنا مشق نہیں کیا ہے، تو آپ ٹینشن نہیں لیجئے، آپ اردو والے کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، اور پھر جو میں طریقہ بتایا ہوں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اثر کا جہاں تک معاملہ ہے تو یاد رکھیے، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ عربی میں پڑھنے سے اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کو پتا ہے
कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान अलग थी, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान अलग थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बान अलग थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अलग थी। अगर एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा से अल्लाह को लगाव होता तो सारे नबियों की ज़बान भी एक ही होती। खुद कुरान पाक में है कि मैंने जितने भी नबी को भेजा जिस कौम में, उस कौम की जो जबान थी उस वही नबी की जबान मैंने भेजा, उसी जबान में मैंने नबी को भेजा, और अल्लाह का संदेश, अल्लाह का पैगाम उसी जबान में आया। इसलिए ये गलत फहमी तो हटा दीजिए कि अरबी पढ़ने से ज्यादा नेकी मिलेगी और ज्यादा सवाब मिलेगा या रुतबा ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी मुसलमानों की गलत फहमी है। आपको जो आप पढ़ते हैं, आप उसको अगर समझते नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने जा रहा, न इस दुनिया में न आखिरत में। एकदम कान खोल के समझ लीजिए। जैसे अंग्रेज अगर आपको गाली दे, अंग्रेज आपको माने इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आपको क्या गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्यार करे, चाइनीज भाषा में करे, जापानी में करे, अगर वो लैंग्वेज आपको नहीं आती है, भाषा नहीं आती है, तो क्या आपको प्यार आएगा? नहीं आएगा। अगर जापानी में आपको कोई या और चाइनीज भाषा में अगर आपको कोई जोक सुनाए, हंसी मजाक की बात, और आपको समझ में ना आए तो क्या आपको हंसी आएगी? नहीं आएगी। मतलब समझ में आ गया कि लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आता है तो दिल पे असर ही नहीं होता है, और जब दिल पे असर ही नहीं होगा तो दिल की परवाज, रूह की जो परवाज है वो आएगी कहां से? इसलिए ये गलत फहमी तो हटा दीजिए। सबसे पहले ये बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि समझता नहीं है लेकिन दुआ अरबी में करेगा। याद रखिए, जो बातें दिल से निकलेगी वही दुआ कबूल होगी, और दिल से निकलने के लिए आपकी जबान का होना जरूरी है। इस सच्चाई से जो मुकरेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होगा, और उसका नुकसान उसको दुनिया और आखिरत दोनों में होगा। झूठ बोलने का दो नुकसान, पर्सनली खुद का तो नुकसान होगा ही उसको, और जो दूसरे को उसने अपनी गलत इल्म से जो नुकसान पहुंचाया है उसका भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, कुरान की थोड़ी सी आयत पढ़िए, थोड़ा सा अमल कीजिए, मगर समझ के कीजिए जो आप पढ़ते हैं, ताकि वो दिल में उतरे, और दिल में जब उतरे तब आपकी रूहानी परवाज होगी, तब दिल की गंदगी दूर होगी, तब दिल के अंदर नूर दाखिल होगा। इसीलिए मैं अपने शागिर्द को वैसा कोई अमल नहीं बताता हूं जो उसकी खोपड़ी से समझ से ऊपर ऊपरे हो, बल्कि हर वो बात बताऊंगा जो उसकी समझ में आने वाली है। मैं जानता हूं कि मेरे इस बातों पे सैकड़ों कठमुल्लाओं का, पेट पुजवाओं मौलवियों का कमेंट आ जाएगा कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप अरबी की अहमियत घटा रहे हैं, ये सब बातें आएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं हक बात ही बोलूंगा। लोग मुझे उंगली मुझ पर उठाएं और उसके डर से मैं हक बात ना बोलूं, चला जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बदलने के लिए मैं बहुत कुछ बदल सकता हूं। देखते रहिए क्या क्या बदलता हूं। अभी तो शुरुआत किया है। मैं आपको बता दूं कि इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, उसका माने याद कर लें, समझ लें, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तभी भी किसी आलिम से आप उसका माने याद कर सकते हैं पूछ के, बस शौक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बहरहाल अब उर्दू वाला आयतल कुर्सी आपको जो माने हैं वो पढ़ना है आखिर तक।
पढ़ना है। फिया खालिदून जो अरबी है उसी के माना जहाँ तक है वहाँ तक पढ़ना है। रही बात कि उसका पूरा माना जो है यानी उर्दू में जो आयतल कुर्सी हुआ आखिर तक, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। आप यहाँ से भी उसको याद कर सकते हैं, और अगर आप कहीं और से भी कुरान पाक से भी याद कर सकते हैं, मंजिल से भी याद कर सकते हैं, और उसमें कुछ उर्दू कुछ टेढ़ा उसका माने रहता है दिया हुआ, तो उसका माने अपने ज़बान में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि वो दिल में बात उतरे। दूसरे की ज़बान को जल्दी अपने ऊपर नहीं हावी होने दीजिए, बल्कि अपनी ज़बान में उसको समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाके बात दिल में उतरेगी। ये चीजें जितने भी नबी ने दुआ पढ़ी है, याद रखिए उन्होंने अपनी जबान में पढ़ी है। और आज के बड़े बड़े आलिम अरबी लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनको मजा मिलता है अरबी पढ़ने में, ठीक। लेकिन जब किसी को गाली देना होता है तो अरबी में नहीं देते हैं। उनके दिल को सुकून मिलेगा कब? जब अपनी जबान में देंगे तब, ठीक। हाँ, तो समझ सकते हैं मामला कहाँ है दिल का। जबान से दिल का कनेक्शन जुड़ा होता है जनाब। जबान दूसरे की आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, दिल में नहीं उतरेगी, दिमाग में उतरेगी। दिल में वही जबान जल्दी से उतरती है जो बचपन से जो उसकी जबान होती है, जो हमेशा प्रैक्टिस करता है, जो हमेशा बोलता है। तो उर्दू वाले की जरूरत इसीलिए दरपेश आई कि यहाँ अरबी जबान अच्छी नहीं है लोगों की, अरबी का इल्म उतना अच्छा नहीं है। तो जिन लोगों ने अरबी अच्छा से नहीं पढ़ा है, तो क्या वो चमत्कार नहीं दिखा सकता है? क्या वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है? क्या वो करामत नहीं दिखा सकता है? क्या उसको रूहानी पावर हासिल नहीं हो सकता है? यकीनन ये सब कुछ होगा, बिना पूरी तरह से अरबी सीखे भी हो सकता है। थोड़ा सा इल्म, अगर थोड़े सा ही इल्म है तब भी सब कुछ हो सकता है। उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ और ये इल्म को आम कर रहा हूँ। बाकी जो जिसकी अरबी अच्छी है उसके लिए तो मैंने आयतल कुर्सी बता ही दिया है। बस ये वीडियो उसके लिए है जिसकी अरबी अच्छी नहीं है। अब कोई सवाल ये भी कर सकता है कि मान लीजिए किसी की अरबी अच्छी है लेकिन उसकी जबान चूंकि उर्दू है, वो चाहता है कि उर्दू में ही करे। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अरबी अगर कोई पढ़ रहा है, आज समझ नहीं रहा या हल्का फुल्का समझ रहा है, तो अरे उसको जो पढ़ने का जो रूहानी असर है, जो उसके दिल पर असर होता है, जिससे ईमान का दर्जा बढ़ता है, वो फायदा उसको अरबी आयतल कुर्सी से नहीं होगा। जो समझ के नहीं पढ़ता उसकी बात कर रहा हूं। और अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको पढ़ने से जो रूह पर और ईमान पर जो असर होता है वो फायदा भी आपको मिलेगा। अब बाकी जो मुवक्किल के आने का और रूहानी ताकत आने का जो फवायद है वो भी आपको मिलेगा। तो आपको दोहरा फायदा मिलेगा। और अगर आप नेकी का इरादा रखते हैं, है ना, नेकी का इरादा रखते हैं तो नेकी भी मिलेगी। इतने सारे फायदे आपको उर्दू वाले से हो सकते हैं। अरबी वाले से सिर्फ मुवक्किल, वो भी जो मैंने बताया शर्त उसके साथ, तो वो मिलेगा आपको। और बाकी अगर दर्जात बुलंद चाहते हैं हर तरह से, तो उर्दू वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मामला सिर्फ मैं फिर से बता रहा हूं कि जिनकी अरबी बहुत अच्छी नहीं है, और जिनकी अरबी बहुत अच्छी है, अरबी को इस तरह से वो पढ़ते हैं, जो बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं और समझते भी अच्छे तरीके से हैं, वो अरबी वाला ही करे, अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि उस आयतल कुर्सी मैंने नहीं बताया था, इसमें मैं आपको बता रहा हूं दोनों चीजें कि जब आप 100 बार आपको पढ़ना है,
तरीका तो वही है जो मैंने उसमें बताया है, उसमें भी देख लीजिएगा। बस 40 दिन का ये अमल है, लेकिन 40 दिन का ही नहीं है, कम से कम 40 दिन का मामला है, लेकिन 40 दिन से दूसरा पड़ाव उसका 100 दिन का है। यानी 40 दिन में अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो 100 दिन उसी जगह पे पढ़ना है। ठीक, जगह नहीं बदलनी है, कमरा वही रहेगा, एक अकेला रूम रहेगा आपका, खासतौर से रात में अमल करने के दौरान टाइमिंग वही रहेगा, और 40 दिन से 100 दिन का ये है। अगर 100 दिन के बाद भी कुछ भी नहीं आपको नजर आता है, न रूहानियत बात होती है, तो क्या करना है? तो इसको लाइफ टाइम पढ़ना है, बस जगह उसके बाद बदल देनी है ना, जगह बदलते रहना है। माने अगर मुमकिन हो तो 40 दिन के बाद जगह इसकी बदलते रहिए। अब जरूर नहीं है कि 40 दिन है, सहूलत के हिसाब से किराए का मकान लेना पड़ेगा, तो लेकिन इसकी जगह बदल बदल के करते रहेंगे, लेकिन इसको लाइफ टाइम करेंगे। अब लाइफ टाइम क्यों करेगा, कौन करेगा? सबसे पहली बात यह है कि इसका जो असर है ये 100% है कि होना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इतना यकीन जिसको इस तरकीब पर होगा, इस दुआ पर होगी, तभी जाके न उसको वो पढ़ेगा, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहले कि जिन लोगों को टाइमिंग से आना है कि हर हाल में उसको 40 दिन में कामयाबी मिल जाना है, या जितना टाइम दिया उसमें मिल जाना है, तो उसके लिए ये अमल नहीं है। ये अमल उन लोगों के लिए है जिसने रूहानियत की तमाम मंजिल को तय कर लिया, यानी अपने रूह का सैर सपाटा कर लिया है, वो रूहानियत का बहुत सारा इल्म उसको हो गया है, आसमानी दुनिया का सैर कर लिया, अल्लाह ताला से उसकी बातचीत होने लगी है, ये सब कुछ होने लगा है। इसके बाद उसको ये महसूस हो गया है, उसने ख्वाब में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या ख्वाब में ये देख लिया कि वो अल्लाह का खास बंदा हो चुका है, ऐसा सिंबल उसको मिल चुका है, साइन मिल चुका है। ये चीज मैं अरबी वाले आयतल कुर्सी में बताया हूं, उसको भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जब ये चीज हो जाएगा तब जाके अब करामत चाहिए, पावर चाहिए, अपने भी यकीन को बढ़ाने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए, और दुनिया में दूसरे की भी जरूरत को पूरा करने के लिए। जैसे कि किसी लोगों के मर्ज को ठीक करना है, लाइलाज मर्ज को ठीक करना है, दिल दिमाग को बदल के जो है दुनिया में चेंजिंग लाना है, हुकूमत को बदलना है, इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो करने होते हैं। तो अगर तालिब का जो इस राह का मुसाफिर है, अगर उसकी सोच ऐसी बनती है कि अब मुझे पावर चाहिए, तब जाके ये अमल है, उसके लिए ही है। अब उसके लिए ऐसा अमल मिलना चाहिए जिसमें कामयाबी की गारंटी हो, जिसको अमल बार बार नहीं बदलना पड़े, एक ही वो चाहिए उसको। ट्रायल वाला मामला नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रायल में होगा क्या कि जैसे मैं ट्रायल करता था, 17 अमल फेल हो गया, करते जाइए छोड़ते जाइए, करते जाइए छोड़ते जाइए, क्योंकि ना कोई उस्ताद रहेगा, ना कोई इल्म में परफेक्शन रहेगा, तो ऐसा ही होता रहेगा, तो वक्त आपका बर्बाद होता रहेगा। अब आपके लिए उतना मेहनत, ये 22-23 साल मैंने मेहनत करके, सबका तजुर्बा करके, और इल्म के इस आखिरी मकाम पर पहुंचकर, तब मैं आपके लिए इल्म को आसान करके आपको बता रहा हूं कि आपको बार बार दुआ नहीं बदलना होगा, उस्ताद नहीं बदलना होगा, है ना। और मैंने इससे क्या होगा कि आपकी टाइम की बर्बादी होगी, अब मिलेगा भी नहीं। चमत्कार मिलता कितने लोगों को है? जितना खोल के हम बात करते हैं, कोई किया है क्या आज तक? कभी नहीं किया, न किताबों में किया, न यूट्यूब के जमाने में कभी किया किसी ने। करेगा कैसे? अरे करने के लिए भी तो अंदर में कुछ होना चाहिए, कभी कुछ पाए रहेगा, कभी कुछ किए रहेगा, तब ना करेगा, उसकी अहमियत को जानेगा तब ना।
यहाँ तक ख्वाहिश सबकी रहती है कि चमत्कार हो, करामत हो, मगर सही नहीं उस्ताद मिलता है आना, उसके लिए वो ज्यादा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। बस ख्वाहिश सिर्फ अंदर में पाले रहता है और दुनिया से ख्वाहिश लिए चला भी जाता है। तो सिर्फ एक चाहिए, एक वजीफा चाहिए, एक इल्म चाहिए, उसके लिए ये आयतल कुर्सी वाला है। तो मैंने तरीका तो बता दिया है कि एक टाइमिंग होना चाहिए, 100 बार पढ़ना है, रोज एक ही टाइम पे पढ़ना है, एक ही जगह पे पढ़ना है। उसके बाद एक दुआ पढ़नी है जब आयतल कुर्सी की हो जाएगी, वो दुआ भी 100 बार पढ़नी है। यही दुआ अरबी वाले में भी पढ़ना है। हाँ, अगर कोई चाहे तो हम तो बताएंगे उर्दू में पढ़ के, उसका वो चाहे तो वहां अरबी में पढ़ सकता है, उसका ट्रांसलेट करके वो अरबी भी पढ़ सकता है। और नहीं तो चूंकि इंडिया पाकिस्तान का मामला है तो इसकी जबान तो इसे भी उर्दू है, तो वो दुआ उर्दू में भी पढ़ सकता है। आयतल कुर्सी को वो रख सकता है अपना अरबी में, जो अरबी में पढ़ेगा। लेकिन वो 100 बार वाली जो दुआ है, जो रूहानी पावर के आने के लिए जो पढ़नी है, आयतल कुर्सी 100 पढ़ने के बाद 100 बार पढ़नी है, छोटी सी दुआ है, उसको उर्दू में ही पढ़नी है। तब जाके उतना कर लेते हैं तो ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। अब इसको पढ़ते जाना है। जब अमल कामयाब होगा तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं रहेगा। ठीक, सामने में आपके अल्लाह के हुक्म से नूर की शक्ल में आएगा, या इंसान की शक्ल में आएगा, या फिर पहले कभी कभी किसी किसी को शुरू में वो सांप की शक्ल में आता है और फिर वो इंसान भी हो जाता है। वक्तिया वो सांप होता है, फिर वो हो जाता है, मगर सांप बहुत कम लोगों के साथ होता है। ये आपको सबसे ज्यादा आपको इंसान की शक्ल में आएगा, और किसी किसी को नूर की शक्ल में, और उसमें आवाज भी होती है। उस नूर में कोई शक्ल नहीं होगा, आवाज होगी, सिर्फ आवाज से बात होगी। वो आपके लिए दुनिया, वो जो दुआ है, दुनिया का हर वो जरूरत वाला जो चीज है वो सब आपकी पूरी हो जाएगी, जो आप सोच नहीं सकते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ झाड़ फूक से नहीं है। झाड़ फूक तो छोटी चीजें हैं, वो तो स्टार्टिंग में यकीन कराने के लिए, इस लाइन में कदम जब रखता है इंसान, तो थोड़ा सा उसका शौक बढ़ाने के लिए, यकीन बढ़ाने के लिए वो सब चीजें जरूरी है, दूसरे की खिदमत करने के लिए। क्योंकि हर कोई बड़ा आमिल या कामिल हो नहीं सकता, तो जो होगा वो वहां तक पहुंचेगा जिसको पहुंचना है, जो जिसको नहीं पहुंचना है वो यहीं तक अपना रहेगा, इतने से अपना काम चलाएगा। तो वीडियो के आखिर में आप उर्दू वाला जो आयतल कुर्सी है वो आपको मिल जाएगा, उसको आप सुन सुन के आप उसको याद कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लिख के भी वीडियो बना दें, और तो उसको आप ये कर सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और बता दें कि मान लीजिए कि जिन लोगों को आयतल कुर्सी याद नहीं है, ना उर्दू वाला याद है, न इसमें याद है अरबी में, तो वो उसका क्या होगा, वो अमल कर पाएगा कि नहीं? देख के पढ़ सकता है। इतना मैं सहूलत दे देता हूँ, इतना मैं आसान बना दे रहा हूँ कि वो देख के पढ़ सकता है, वही असर करेगा। हाँ, अब देख कर पढ़ेगा तो पढ़ते 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 याद कर लेना है, तो ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगा। जहाँ 20 दिन गुजरेगा, 15-20 दिन तो जबान पे बैठ जाएगा, उसके बाद याद कर लेगा उसको, इस तरह से याद हो जाएगा। जब तक याद नहीं है देख के पढ़ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको आयतल कुर्सी का अमल मुकम्मल बता दिया है। फिर से मैं बता देता हूं कि ये अमल, हाँ, अब आसानी के लिए कि ये अमल के लिए कब्रिस्तान जरूरी नहीं है, बस एक कमरा काफी होगा। क्योंकि कब्रिस्तान में सबके बस की बात नहीं है, और हमेशा कब्रिस्तान में आप आसानी हो जाए ऐसी भी बात नहीं है। बहुत सारे कब्रिस्तान में ताला चाबी लगा रहता है, जिसको जल्दी आपको मिलेगा नहीं। और कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जिनको ये सब इल्म का शौक होता है
پھر اس کے لیے بھی قبرستان نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اس علم کو میں آسان کر کے آپ کے لیے بتا دیا ہوں، آپ کمرے میں روم میں بھی کر سکتے ہیں۔ کھانے پینے کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ جس زمانے میں کوئی استاد نہیں ملے گا اس زمانے میں بھی جیسے میں نے بتایا ہے ویسے آپ کریں گے، آپ کو پوری کی پوری کامیابی ملے گی، آپ خود استاد بنیں گے اس زمانے میں۔ کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بس فرق یہی ہے کہ اس عمل کو کرنے کے پہلے سب سے پہلے جو جتنا عمل میں نے بتایا ہے وہ سب کو کر لے اور بندہ اللہ تک پہنچ جائے، اپنے دل کی، دماغ کی، روح کی کشافت کو، گندگی کو، نفس کی گندگی کو جب وہ دور کر دے گا اور کر چکا ہوگا اور اللہ کی محبت کا غلبہ اس کے قلب۔ ہاں تو پیارے ناظرین، یہ جو عمل ہے اس کو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب پوری طرح سے آپ روحانی لائن کا سارا عمل کر چکے ہیں۔ آخری عمل کے طور پہ اس کو کیا جاتا ہے اور جو اس کو کرے گا اسی کو کامیابی ملے گی۔ جو ٹرائل کے لیے آئے گا، جس کو صرف موکل سے مطلب ہے، اس کو باقی کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، اس کو صرف پاور چاہیے دنیا میں تہلکہ مچانے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ وہ کرے گا اس کو کچھ بھی اس میں نہیں ملنے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بالکل میں صاف ستھری بات بتا دیا ہوں، اس لیے وہ کوشش بھی کرے گا تو اس کو کچھ ملنے نہیں جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسپیشل اسی کے لیے ہے جو پوری طرح سے ہر عمل وہ کر چکا ہے، جو اللہ تک پہنچنے والا ہے، ذکر و اذکار کر چکا ہے۔ اب اس کو چمتکار چاہیے اپنی ضرورت کے لیے، لوگوں کی ضرورت کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، ویسے لوگوں کے لیے ہے۔ ویسے لوگوں کے اندر دو تین خوبیاں ضرور آ جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ شانتی پریے، شانتی پسند ہو جاتا ہے، امن پسند ہوتا ہے، اس کے اندر میں صبر بھی آ جاتا ہے، وہ ہڑبڑاہٹ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا ہے، جلدی جلدی وظیفہ عمل نہیں بدلتا ہے اور وہ انتظار کر سکتا ہے، اس کا یقین بھی بہت تگڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ سب صفت پیدا ہو جائے گی، یہ سب کے قابل ہو جائے گا، تب جا کے یہ کرنا ہے۔ یہ تحفہ میں اسی کے لیے دیا ہوں، یہ حق انہی لوگوں کا ہے، باقی ان دنیا دار لوگوں کا جس کو صرف موکل کی تلاش رہتی ہے، اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ دوسری ویڈیو دیکھے گا، جو میں جن پر پھر سے ویڈیو بناؤں گا، جس میں ایک بحث ہوگی، جو میں نے 3 عمل جو بتایا ہے، سورہ جن کا، سورہ مزمل کا اور آیت الکرسی کا، اس پہ ایک کمپیریٹیو بحث میں کروں گا کہ تینوں میں کیا فرق ہے، کون کس سے زیادہ بہتر ہے، کس کا کون سا وزن ہے۔ اس طرح سے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن کوئی ڈائریکٹ اگر موکل کا ہی عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا بھی خیال رکھیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دے اور دین دنیا میں آپ کو ہر وہ مقام عطا فرمائے جس کی آپ کی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں اور جو کام کا علم ہے، جو انسان کے فائدے کا ہے، وہ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔